Good morning, children. Welcome back to our English class. How are you all? I hope you all are fine and safe and healthy at your home. Okay, children. So we were on our topic pronouns. I told you about pronouns and personal pronouns and possessive pronouns. Today we will do reflexive and relative pronouns. First of all, we will know about easy one. I will tell you about first of all reflexive pronoun. Our third one is reflexive pronoun. Third is reflexive pronouns, and our fourth is relative pronoun. Now first of all I want to tell you about reflexive. Now in reflexive pronoun जितने भी pronouns हैं उनके पीछे we always use self or selves. Means self और self. Self हम singular के लिए we always use for singular and selves we always use for plural. As you all know that f को हम जब we change into plural we write VES. हम VES कर देते हैं, right? So now first of all see our pronouns. His का him हो जाता है इसमें, him, her, our, their का them हो जाता है चिल्ड्रन, them है, it है. Now all these are pronouns. इनके बाद में we have to join this, we have to add self or self. Him, self, her, self. On now these are used for single person, so their self will come. Herself will not come. अब our means हम, more than one हो गया तो already this is plural, so we will use self. Now them means they. Again more than one. It is used for plural. More than one person, so self will come. It is used for singular, so it's self. Okay children, so these are all reflexive pronouns. जिनके बाद में भी self होता है, all these are reflexive pronouns. Okay children, you have to use. Now इसमें आपको they have given two types, reflexive and intensive. Don't get confused in reflexive and intensive. They are the same words. बस उनका यूसेज है कि intensive जो है वो तुरंत they are just after followed by a noun or pronoun. But just don't get confused. आप इतना देख लीजिए, these are reflexive pronouns. You just know one thing, that all these are reflexive pronouns. Don't get confused in reflexive and intensive pronouns. आप उसमें कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ इतना देख लो, वन नाउन देख लो, आप प्रोनाउन देख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड ऑल दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. मीन्स जिनके बाद में भी सेल्फ और सेल्व्स विल कम, दे ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. himself, herself, ourselves, themselves, itself. Now you all know that for which we will use self and self. Obvious children, self is used for singular, as you all know. F, when we convert it into plural, we always change it into VES. We remove the F and write VES. First thing. Second, him, her, it. All these pronouns are used for a single person. And it we always use for animal, birds and things. Okay, so after them only self will come. And our and them. These are always used for more than one person.
so cells will come. So all these are reflexive pronouns. Okay children, now let me tell you exercise. It will become very easy for you. Now see, she keeps praising herself. She keeps praising herself. First आएगा हमारा. Second is, your social science project is very good. Have you done it? It means yourself. Have you done it yourself? This is A and this is B. Then we have your is written in first and second sentence. It is first only your is written, so we will do it yourself. We वर्ड है तो we means हम, तो we का हो जाएगा R और इसको हम कर देंगे ourselves. Then we will see it, the city. अब city के लिए कहा गया है तो name is not given, so definitely we will use it. City के लिए we will always use it. Itself. E. The dog. And as I told you, for animals, birds and things, we will always use it. Because here, gender is not mentioned. So we always use it. तो it. Dog के लिए हम क्या use करेंगे? Itself. Okay children. Now we have, by being dishonest, you. यू दिया हुआ है तो यू से आप क्या बनाएंगे? योर सेल्फ. यू का हमेशा बन जाता है योर सेल्फ. योर सेल्फ. देन वी हैव आई. आई मीन्स मेरा. आई का आप माई बनाते हो तो ये हो जाएगा माई सेल्फ. myself. Now children. चिल्ड्रन है, मोर देन वन है, राइट चिल्ड्रन. तो वे हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? एज आई टोल्ड यू, ourselves and themselves. These two are plural, rest all are used for singular, right? तो ourselves तो आएगा नहीं, चिल्ड्रन है, हम वी की जगह हमने क्या यूज किया था? ourselves. So at time of children we will use themselves. For children we will use themselves because only two are used for plural or for more than one person. Ourselves and themselves. Ourselves will not come as we is not written. It is for children. So we will use themselves. Like this it will be very easy for you where we have to use herself, where we have to use yourself, itself, ourselves. If girl is there, herself. Boy is there, himself. You is given, yourself. City, dog, animal, thing, anything is given itself. Okay children. Now last one more, two are left. The little girl. Again as I told you, for girl we will use herself. Jordan. Now he is a male, as the name suggests he is a boy, so for boy we will use himself.
Like this you have to do the exercise, and I think it will be very easy for you now to where you have to use himself, where you have to use herself, themselves, myself. Okay children, now come to our relative pronoun. Now come to relative pronoun. Now, as the word suggests, these pronouns are used in the place of word which relates to the noun. मतलब ये वो pronoun है जो उसी लाइन में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसके बारे में बात हो रही है उसी से रिलेट करते हैं. मीन्स वो उस नाउन से ही रिलेट करते हैं, वो उसकी जगह यूज नहीं करते हैं. Like all these pronouns, मैंने आपको कहा था pronouns are used in place of noun. Personal pronouns are used in place of nouns, right? But relative pronoun में subject is given, name दिया होता है, जो भी आपका subject है noun है that is given, और ये उसी subject से related, उसी noun से related pronoun उसी sentence में दिए होते हैं. मीन्स दे रिलेट टू द नाउन. वो नाउन भी दिया होता है और उसी के लिए वो हम यूज दैट प्रोनाउन, वो उसी से रिलेट करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. मीन्स वो उनकी उसकी जगह यूज नहीं हो रहे, दे रिलेट टू द नाउन, दे रिलेट टू दैट सब्जेक्ट और दे रिलेट टू दैट सब्जेक्ट फॉर उस हम नाउन के लिए यूज करते हैं जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है. उसी के नाउन भी दिया होता है और ये प्रोनाउन भी सेंटेंस में उसी के बारे में हमें दिया होता है. उसी मीन्स एक सेंटेंस में नाउन है और जो प्रोनाउन है वो उस नाउन से जुड़ा होता है, उस नाउन के लिए ही वो यूज होता है. मीन्स सेम सेंटेंस में वो नाउन भी है और वो प्रोनाउन भी है जो उसके लिए लिखा गया है, तो वो उससे रिलेट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. ओके चिल्ड्रन, मीन्स वो उसी नाउन से रिलेट कर रहे हैं सेम सेंटेंस में. दे आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट नाउन. वो उस नाउन की जगह यूज नहीं हो रहे, उस नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन है, वो उस नाउन से रिलेट करते हैं. वो प्रोनाउन मीन्स उस सेंटेंस में ही वो नाउन है, उसी सेंटेंस में वो प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है वो उस सेंटेंस से रिलेशन में है, उस सेंटेंस से रिलेशन में दिया हुआ है. Now for example, I said someone's bottle is lost. कोई क्लास में बॉटल लॉस्ट हो जाती है, so I say और बाद में वो बॉटल हमें मिल जाती है और वो हमें पता चलती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ अतुल. तो अब मैं आपको समझा रही हूँ, मान लो कि वो बॉटल लॉस्ट हुई थी विच वॉज ऑफ अतुल, जो अतुल की थी. अब अतुल इज नाउन और आई एम सेइंग विच वॉज ऑफ अतुल, जो अतुल की थी, राइट. विच जो है इधर रिलेटिव प्रोनाउन है, वो उसी प्रोनाउन नाउन की जगह उसी नाउन से रिलेशन में यूज हो रहा है, उस नाउन की जगह यूज नहीं हो रहा है. नाउन दिया हुआ है आपके सेंटेंस में अतुल. द बोटल, या मैं कह सकती हूँ द बोटल दैट वॉज लॉस्ट, द बोटल विच वॉज लॉस्ट. मैं क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि बोटल भी नाउन है, इट्स अ थिंग जो हमारी क्लास में लॉस्ट हो गई, तो मैं कह रही हूँ द बॉटल विच वॉज लॉस्ट और द बॉटल डेट वॉज लॉस्ट. अब वो बॉटल जो लॉस्ट हो गई थी, अब वो बॉटल जो है डेट इज नाउन और मैंने उसका आपको सेंटेंस यूज किया है द बॉटल डेट भी यूज कर सकते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं. डेट वॉज लॉस्ट लास्ट वीक, जो लास्ट वीक हमारी लॉस्ट हो गई थी, राइट चिल्ड्रन. अब बॉटल इज नाउन, अब इसकी जगह आपको कोई प्रोनाउन नहीं यूज करना है. प्रोनाउन इज डेट.
और ये इसी से रिलेशन में यूज हुआ है, वो बॉटल जो लॉस्ट हो गई थी वो। नाउ वो इज डेड विच दीज आर प्रोनाउंस, और ये इस बॉटल के लिए यूज हुआ है। तो सेम सेंटेंस में योर नाउन इज ऑल्सो देयर एंड योर प्रोनाउन इज ऑल्सो देयर, एंड दिस प्रोनाउन इज यूज्ड इन रिलेशन टू दिस नाउन। ये इस नाउन के रिलेशन में हमें दिया हुआ है, ये इस नाउन से रिलेट कर रहा है, इस नाउन से ये जुड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव pronoun. Now let me tell you some more examples. हम exercise करते हैं, so it will be become clear to you all. For example, आपको कोई you went to the market और आपको कोई एक पर्सन मिलता है जिसने कुछ डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहन रखे होते हैं, या तो आप हमें कहते हैं ना वो जिसने फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर के ड्रेस पहन रखी थी। सो द पर्सन दैट वोर ब्लैक कलर ड्रेस, और द पर्सन हु वोर, पर्सन के लिए हम हु यूज करेंगे, तो द पर्सन हु वोर ब्लैक कलर ड्रेस। हु आर रिलेटिव प्रोनाउंस, और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, एंड यू कैन से दैट, हुज, that is used not for person, it is it is used for a thing or a place name or an animal. Means except for person, place name, thing name or animal, for that for these we use always that. So all these are relative pronoun. तो ये दो प्रोनाउंस आपको करवाएं जो बिल्कुल एंटायरली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें आपका था योर सेल्फ मीन्स जिनके बाद में सेल्फ और सेल्फ आता है। दीज आर हु, विच, हुज, डेट। ओके चिल्ड्रन, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये मेन डिफरेंस आपको इसमें पता चल जाएगा कि अभी जो आपने पर्सनल प्रोनाउन किया था उसमें आपने आई, मी, आई किया था, ही, शी, हिज, यू, दे, देम, you use them. Now in these pronouns, reflexive pronouns, you used self or selves, yourselves, themselves, and जो हमने पहले किए थे डेमोन्स्ट्रेटिव में, उसमें हमने किया था कि that, ours, his, hers, you used an s, और उसमें आपने ये वर्ड्स यूज किए थे। हर प्रोनाउन अपने आप में डिफरेंट है, दूसरे प्रोनाउन से डिफरेंट है, सेम वर्ड्स हमारे नहीं यूज हो रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। पर्सनल प्रोनाउंस में डिफरेंट वर्ड्स थे, देन उस प्रोनाउन में देन यू हैव डिफरेंट वर्ड्स, देन इन दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे आर डिफरेंट, एंड रिलेटिव प्रोनाउन दे आर डिफरेंट। राइट चिल्ड्रन, मीन्स आपका जो फर्स्ट आपने किया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आपने यूज किए थे ही, शी, यू, दे, आई। राइट चिल्ड्रन, देन पोजेसिव में थे, इसमें आपने हिज कर दिया, हर्ट्स कर दिया, योर्स कर दिया, आर्स कर दिया। मीन सबके लास्ट में एस है, ये इनका एक आइडेंटिटी है। राइट चिल्ड्रन, इनकी पहचान है कि आप इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन वी डिड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें आपने सेल्फ वाले किए, देम सेल्फ, herself, ourselves, himself. राइट चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल इसी में देखिए, पर्सन में हम इट यूज करते हैं, पोजेसिव में इट्स हो जाएगा,
और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ हो जाएगा, राइट। और रिलेटिव में तो ये कुछ भी नहीं आता है। रिलेटिव में हु, विच, हुज, दैट ये प्रोनाउन यूज होते हैं। दीज आर नॉट यूज्ड। सो राइट नाउ आपको जो आज हमारे 4 प्रोनाउंस कंप्लीट हुए हैं, उन 4 की एक समरी मैंने आपको बता दी कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लास्ट अभी हमने किया है, नेक्स्ट वी विल डू इन रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। करंटली मैंने आपको 4 मैंने आज रेस्ट 2 भी जो आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में किए थे डेट आल्सो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, और ये भी आज जो 2 हमने किए वो अगेन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। और आई एम टेलिंग डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 4 प्रोनाउंस। मैंने आपको क्लियरली कि 4 प्रोनाउंस हाउ दे आर डिफरेंट एंड द 4th वन रिलेटिव प्रोनाउन इट इज एंटायरली डिफरेंट। उसमें हम ये कोई भी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ हु, विच, हुज, दैट these pronouns are used. Okay children, rest we will discuss in live class. So bye for today. Stay at home, stay healthy and stay safe and take care of yourselves.